السلام علیکم۔ پاکستان میں ترکش ڈرامہ ارطغرل کے چرچے تو وہیں عرب ممالک میں دکھایا جانے والا ڈرامہ سیریز نے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے پہلے یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کے درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھے جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے۔ انہی کی فتوحات کے باعث سلطنت عثمانیہ کا قیام ممکن ہوا تھا۔ ترک سیریز ارطغرل غازی انہی کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسی تاریخ کا دوسرا حصہ بھی ریلیز کیا جا چکا ہے، جس میں عثمان یعنی ارطغرل کے بیٹے کی زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں جو پڑھا تھا وہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، چاہے وہ حقوق العباد ہو، بڑوں کا احترام ہو یا عدل سے حکمرانی ہو، وہ سب اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک والد اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق پرورش کرتا ہے۔ ڈرامے کی ہر 5ویں چھٹی قسط میں اسلام کے مختلف پہلوؤں اور تاریخی واقعات کا ذکر تفصیل میں کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے علاوہ ڈرامے میں جنگیں اور مارکے بھی ہیں، اور یہی اس ڈرامے کی مقبولیت کی بڑی وجہ ہے۔ ارطغرل غازی اب تک افغانستان، البانیہ، الجزائر، عرب دنیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش، بوسنیا ہرزیگوینیا، برازیل، کینیڈا، چلی، انڈونیشیا، اردن، قازقستان، پاکستان، جنوبی افریقہ، صومالیہ، شمالی قبرص، تیونس، برطانیہ، امریکہ، ازبکستان اور وینزویلا میں بہت مقبول ہوا ہے۔ لیکن جب ارطغرل عرب دنیا میں مقبول ہوا تو اس پر پابندی لگا دی گئی، اور سعودی عرب کے دبئی میں موجود مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر نے اس ڈرامے کو اپنے ٹی وی نیٹ ورکس پر ممنوع قرار دے دیا۔ نتیجہ نکلا کہ عرب دنیا میں ارطغرل کی مقبولیت پہلے سے بڑھ گئی۔ عربوں نے اسے آن لائن دیکھنا شروع کر دیا، اور کہا جا رہا ہے عرب دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں ملینز میں ہے۔ پھر ممالک النار کی شکل میں متبادل لانے کی کوشش کی گئی۔ عرب امارات اور مصر میں اس کے خلاف مہم چلائی گئی۔ اسے عرب قومیت کا عنوان دینے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ عرب دنیا میں ارطغرل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ان دنوں جب ارطغرل سیریز کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، سعودی عرب کی جانب سے پیش کردہ ایک سیریز نے ساری اسلامی ریاستوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ ان دنوں سعودی عرب اور خلیجی ٹی وی چینلوں پر دکھائی جانے والی رمضان ڈرامہ سیریز ایگزیکٹ 7 پر کافی تنقید ہو رہی ہے، جبکہ بعض حلقوں کی طرف سے اس ڈرامہ سیریز کی حمایت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے تو ہیں ہی نہیں، لیکن ان تعلقات میں مزید بہتری کا امکان نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایگزیکٹ 7 نامہ رمضان نامی سیریز دوسری قسط میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی بات کی گئی ہے۔ دوسری قسط نشر ہونے کے بعد فلم کے منتظمین پر کڑی تنقید کے تناظر میں سیریز کے مصنف اور پروڈیوسر خلف الحربی نے العربیہ.net کو اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں ذاتی طور پر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کی دوستی کا حامی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامائی تمثیلات الگ اور زمینی حقائق الگ ہوتے ہیں۔ ہم ڈرامائی انداز میں کوئی تصور پیش کرتے ہوئے انتہائی حساس علاقوں میں داخل ہونے کے عادی ہیں۔ اس باب میں داعش اور دہشت گردی کے مظاہر یا شیعہ یا سنی فرقہ وارانہ اختلافات ایسے موضوعات ہیں جن کا ڈرامائی تصور پیش کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔
ऐसे मनाजर को ड्रामाई अंदाज में पेश करने पर बहुत से लोग मुश्ताइल हो जाते हैं। इन ड्रामाई तमसीलात की राय आमा की सोच पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं और लोग इस पर अपना मस्बत और मनफी दोनों तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एग्जैक्ट 7 में पेश करदा मुकालमों का मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए राय आमा हमवार करना हरगिज नहीं है। ड्रामा देखने वाले नाजरीन खुद फैसला करें कि क्या हम इस सीरीज के जरिए इसराइल के साथ दोस्ती की राह हमवार कर रहे हैं। ड्रामे के जिस सीन में इसराइल के साथ दोस्ती के फ़रोग़ का मफ़हूम आख़ज़ किया जा रहा है, वो ड्रामे के 2 किरदारों मौका परस्त दादा और शोहरत के लिए कोशां भाई के 2 किरदार हैं। ड्रामे के दीगर किरदारों ने वाज़े और सरी अल्फाज में इसराइल के साथ दोस्ती की हमायत से इनकार किया है। अल हरबी का कहना था कि हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ के पुरज़ोर हामी हैं और दिल और जान के साथ फ़लस्तीनी कौम के साथ हैं, मगर हम फ़लस्तीनियों की तरफ से खलीजी ममालिक और इनकी क़यादत के खिलाफ तकलीफ दे और जहर आलूद बयानात पर दुखी भी हैं। मेरा ख्याल है फ़लस्तीनियों की तरफ से अरब क़यादत पर तनकीद से इसराइल को फ़ायदा पहुँच रहा है। इसराइल ही अरबों और फ़लस्तीनियों के दरमियान नफरत और दुश्मनी के बीज बो रहा है। ड्रामे के किरदार नासिर अल कसबी के अल्फाज में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो असूली मौक़िफ़ है। फ़लस्तीनियों ने सऊदी अरब की टीवी ड्रामा सीरीज पर सख्त तनकीद की है, जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामा सीरीज उम्मे हारून और एग्जैक्ट 7 शो दुबई में कायम सऊदी टीवी नेटवर्क मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के जरिए नशर किया जा रहा है। गजा की पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास ग्रुप के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि टीवी ड्रामों को अवाम और इनके नजरियात का इजहार करना चाहिए, न कि मखसूस नजरिए का प्रचार करें। उन्होंने तुर्क न्यूज एजेंसी अनातोलिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस साल तैयार किए गए कुछ अरब ड्रामे इस मामले का एहतराम नहीं कर रहे और वो अजीबो गरीब नजरियात फैलाते हैं जो कब्जे के साथ बकाए बाहमी का मुतालबा करते हैं और फलस्तीनी मकासद पर सवाल उठाते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल खतरा है और वो हमेशा अरब कौम का पहला दुश्मन रहेगा। फलस्तीनी इस्लामी जहाद तहरीक के तर्जुमान मसअब अल बरीम ने भी सऊदी ब्रॉडकास्टर से नशर होने वाले मुतनाज़ ड्रामे की मुज़म्मत की और उसे तमाम अरबों और मुसलमानों के लिए तारीखी धचका करार दिया है। उन्होंने कहा ये एक ऐसी जहनियत की अक्कासी करती है जो इदारों पर हुक्मरानी कर रही हैं और इस तरह की प्रोडक्शन के पीछे रियासतों का हाथ होता है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब अपने तमाम अखलाकी असूलों से दूर हो गया है। उन्होंने कहा कि इसराइली कब्जे के साथ मामूल के ताल्लुकात इस्तवार करने का मुतालबा गैर अखलाकी और अखलाकी गिरावट है, खास तौर पर चूंकि ये ड्रामा इन ममालिक और जमातों की जानिब से नशर किया जा रहा है जिन्हें बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन के हकूक़ के शामिल होना चाहिए। जमहूरी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन ने सऊदी अरब के टेलीविजन नेटवर्क पर नशर किए जाने वाले ड्रामे फ़लस्तीनी कौम की तौहीन करार देते हुए इनकी नशरियात फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। जमहूरी महाज की तरफ से गुज़श्ता रोज प्रेस को जारी होने वाली एक बयान में कहा गया कि खलीजी अरब ममालिक और इनके ज़राए अबलाग से उन्हीं अमरीकी एजेंडे पर चल रहे हैं। अरब ममालिक की हुकूमतों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनी कौम की तज़हीक और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की राह हमवार करने वाले तमाम ड्रामे और फिल्में बंद करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि ऐसे ड्रामे फलस्तीनी कौम के हकूक की आवाज बुलंद करने की बजाय जालिम सयूनी रियासत के मकरूह चेहरे को खुशनुमा बनाकर पेश कर रही हैं। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में मौजूदा क़यादत के इक़्तिदार से पहले मोहम्मद अल खिज़री कई दहाइयों तक सऊदी अरब में हमास के नुमाइंदे थे और उस वक्त फ़लस्तीन की हामी हुकूमतें थीं, लेकिन अब हालात इसके बरक्स हैं और साफ नजर आ रहा है कि सऊदी अरब मुसलमानों के बदतरीन दुश्मनी और फ़लस्तीनियों के हकूक़ को पामाल करने वाले इसराइल के साथ गठजोड़ करने की ठान चुका है, क्योंकि ताकत के नशे में चूर सऊदी अरब को उम्मत मुसलमा के मफाद से ज़्यादा अपने मफादात अजीज़ हैं। इसीलिए सऊदी हुकूमत दिन ब दिन मुतनाज़ होती जा रही है। दोस्तों, ये हकीकत है कि किसी भी मजहब की अक्कासी या किसी भी कौम की अक्कासी जो है उसके ड्रामा के जरिए की जाती है। और अब जिस तरह से अर्तगरल गाजी ड्रामा पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है,
इस ड्रामा सीरीज के आगाज से पहले ही इसकी पसंदीदगी के हवाले से ये बात की जा रही थी कि इस ड्रामा को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाएगा, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। इस ड्रामा सीरीज के चलते ही पूरी दुनिया इसके गिरविदा होकर रह गई। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात यकीनन तशवीशनाक हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे मामले में कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर रखा है और हमारे बैतुल मक़दस पर भी जो है वो कब्जा कर रखा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है यकीनी तौर पर तमाम मुसलमानों का खून खौलता है। और कभी भी हम ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुए कि हम इसराइल को माने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सऊदी अरब जो कि मुस्लिम उम्मा का गढ़ समझा जाता है, हमारे लिए बड़ी मुकद्दस जगह है, और हर मुसलमान वहां जाने की ख्वाहिश दिल में लिए फिरता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो मक्का और मदीना की गलियों में जरूर हाजिरी दे। लेकिन अब सऊदी अरब का इस किस्म का रवैया क्या जाहिर करता है, इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सऊदी अरब के इसराइल के साथ बढ़ते ये ताल्लुकात क्या जाहिर करते हैं, क्या ये फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती नहीं है? इस हवाले से तो सऊदी अरब को फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनना चाहिए था और सियोनी रियासत को बिल्कुल जो है वो तस्लीम नहीं करना चाहिए था और उनके साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन जो कुछ सऊदी अरब कर रहा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।